میں ایک ایسے ہی امیر کے پاس گیا جو بیمار تھے. میں نے ان کی نبض پکڑ لی. وہ 1 سال سے سوئے نہ تھے، 6 ماہ سے کھانے کی کوئی چیز نہ کھائی تھی. ہڈیوں کے اس ڈھانچے پر سوائے کھال کے کچھ باقی نہ تھا. امیر کی پناہ چاہتا ہوں. وہ بلی کی طرح کمزور اور دکھی تھے. میں نے ان کی نبض پکڑی اور انہیں 3 دن رات دوا کھلائی. چوتھے روز امیر اندلس نے بھنا ہوا بکرا طلب فرمایا. میں نے باورچی کو بھنا ہوا بکرا لانے کو کہا، وہ لے آیا. امیر کی پناہ. امیر اندلس نے سارا بکرا تناول فرمایا. پھر انہوں نے میٹھا طلب کیا کہ سورج نکل چکا تھا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں ہے، ان لوگوں کے لیے جو بادشاہوں کی عجیب و غریب خصوصیات سے آشنا نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے بادشاہوں اور امراء کی مخصوص طبیعت کو خود اپنی طبیعت کی طرح سمجھ بیٹھتے. کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ ان کی دوائیں شفا بخش ہوں گی، نہ کہ جسم اور روح کے لیے ضرر رساں؟ ان کی زندگیاں ان کی دواؤں کی ضامن ہوں گی. اے حکما، تم میں جتنی طاقت ہے کام میں لاؤ. امیر کی نبض کو اچھی طرح ٹٹولو، انہیں شفا بخش دوائیں کھلاؤ، اور 3 دن رات ان کے سرانے رہو. اگر 3 دن رات کے بعد امیر کی حالت بہتر ہو گئی تو اس دربار سے تمہیں بہت تحفے تحائف عطا کیے جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور امیر کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو ذلت کے ساتھ دربار سے نکال دیے جاؤ گے. پھر اپنی جان کی خیر مناتے ہوئے یہاں سے نکل جانا. اگر امیر سے پناہ چاہتے ہوئے جان کی امان مانگتا ہوں، اس بات کی جو کہنا چاہتا ہوں، اگر خدا نخواستہ امیر کی حالت خراب ہو گئی اور روبہ زوال ہونے لگی تو تینوں کی گردن اڑا دی جائے گی. یہ مناسب ترین سزا ہے. اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو. میں گرگان کا کاشتکار ہوں، طب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میں نے تو بکرات اور جالینوس کا نام بھی نہیں سنا ہے. مجھے غلطی سے حکیم سمجھ بیٹھے ہیں. میں تم پر رشک کرتا ہوں کہ کاشتکار ہو اور تمہیں غلطی سے حکیم سمجھ لیا گیا ہے. میں ایک تاجر ہوں، تاجر گھوڑوں کی خرید و فروخت کرنے والا. انہوں نے مجھے ایک عالم سمجھا اور لباس فاخرہ پہنا دیا. یہاں آپ کے پاس بیچنے کے لیے کوئی بچھیرا نہیں. میں گھوڑوں کا دلال ہوں. آپ گھوڑے نہیں خریدنا چاہتے؟ میں گھوڑے کو دور سے پہچان لیتا ہوں. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ہمارا وزیر کاشتکار اور دلال کو ہمارے علاج کے لیے پکڑ لایا ہے. شاید امیر کی ہیبت سے ان کی عقل ماری گئی ہے. تم طبیب نہیں ہو؟ میں تو گرگان کا ایک کاشتکار ہوں. میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک کبھی طبابت نہیں کی ہے. کیا یہ تیسرا بھی دیوانہ ہے؟ بات کرنے سے پہلے امیر کا ہاتھ چومنے کی اجازت چاہتا ہوں. امیر کا 1000 بار شکریہ. بات کرو. جس زمانے میں میں نوجوان ہوا کرتا تھا، غاروں اور پہاڑوں میں اکیلا اور تنہا رہتا تھا. میں دن کو بجلی کی کڑک اور بادلوں کا شور اور درندوں کی آوازیں سنتا تھا، اور رات بڑے ہی کرب اور وحشت میں گزرتی تھی. آگے بات کرو. ایک روز جب دن نکلا تو میرے دوستوں نے مجھے ڈھونڈ لیا، لیکن خوف کی وجہ سے میں دیوانہ ہو چکا تھا. میں ایک ڈریا تھا اور خود کو حکیم سمجھتا تھا. میں نے اپنی بھیڑیں توفتاً بھیڑیوں کے حوالے کر دی. میں اپنے پاؤں پر چلنے کی بجائے اپنے دونوں ہاتھوں پر چلتا تھا. بچے مجھ پر سنگ باری کرتے تھے، وہ اپنی لاٹھیاں مجھ پر برساتے تھے. میں نے بہت سفر کیے، بہت تکلیفیں اٹھائی، لیکن
मैं अपनी अकल को न पा सका। फिर हत्ता कि मैं उनलस के एक हकीम के पास जा पहुंचा जिसने मेरी बीमारी को पा लिया और समझ गया कि मेरी बीमारी पहाड़ में रातों के खौफ की वजह से थी। उसने मुझे बीमारी का इलाज बताया। तुम्हारा इलाज क्या था? अमान चाहता। अमीर उसने कहा कि अगर तुम दोबारा साहिब अक्ल होना चाहते हो तो किसी बादशाह का हाथ चूम लो, बस तेरा यही इलाज। मैंने उसे कहा, अय हकीम, मैं शहर और बस्तियों से धुतकारा हुआ एक गडरिया हूं, मैं तो एक दीवाना हूं। कौन अमीर मुझे अपना हाथ चूमने देगा? फिर क्या हुआ? उनरसी हकीम ने कहा, बात वही है जो मैंने कही। उसके बाद से मैं सारी दुनिया में फिरा, लेकिन मुझे किसी अमीर की ज़ियारत नसीब ना हुई। कौन अमीर मुझ जैसे कम अकल दीवाने को शर्फयाब करता? तांग के मैंने सुना कि अमीर नो इब्ने मंसूर अमीर सामान बीमार है। अमान चाहता, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अक्ल की सलामती से गुजारूं। जब मैं अपनी मुराद को पहुंच गया हूं, मैं अब जीना नहीं चाहता। मुझे मार दे, मुझे सूली पर लटका दे, मेरी गर्दन उड़ा दे। मगर ऐ अमीर मोहतरम, मुझे हकीम हरगिज़ न समझे। अमीर ने तबस्सुम फरमाया है और इस तबस्सुम की बरकत से तुम बख्श दिए गए हो। उठो और जाओ। तू तो बड़े कमाल का किस्सा गो है शख्स। जनाब अमीर, मैं एक बड़े हकीम को तो जानता हूँ। कौन है? अमीर की शयान शान नहीं है, वो रियाया का इलाज करता है। उसके हाथ गुर्बत से आलूदा है। उसका नाम ना लो। उसका नाम बताओ। हुसैन अबू अली इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना। जाओ जाओ जाओ। निकलो निकलो निकलो। कोई 56 साल है। नहीं, इससे ज्यादा है। तुम्हें कसम है खुदा की, अगर तुम वही हकीम हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता अगर वो अली सीना हो तो मुझे बताओ, और अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि मेरे बेटे को शिफा दे दो। जिसकी तुमने कसम खाई है वही शिफा देता है। मैं तो उसका बंदा हूँ। मेरा नाम हुसैन अबू अली बिन अब्दुल्ला इब्ने सीना है। खुदा गवाह है कि मेरे पास इससे ज्यादा कुछ न था। ये मामूली से चावल हैं, इन्हें कबूल कर लो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ? हमें पता चला कि अबू अली सीना हमारे कूचे में आया है। मैं यहीं करीब रहती हूँ। बच्चे को उठाओ और ले जाओ। घर का दरवाजा खुला रखना, वो अली इसे देखने जरूर आएगा। उम्र के 4 मरहले हैं। अव्वल सीने नमू, जैसे वो बच्चा जो तुमने अभी देखा। दूसरा सीने जवानी। तीसरा अधेड़ उम्री, जिसमें ताकत घटती है और ये 60 साल तक है। और चौथा उसके बाद जैसा कि तुम।
जब तुम किसी चीज का दवाम चाहते हो तो गोया उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते हो। बस अव्वल ये कहता हूं कि इतदाल रखो हर चीज में और हर काम में। तुम में जवानी की कुव्वत रूबे ज़वाल है। दूसरी बात यह कि तुम्हारा मर्ज दवा का मोहताज नहीं है। और तीसरी बात यह है कि तुम्हारा इलाज ही इतदाल है। लो ये लो, इसे कबूल करो। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे जवान, तुम्हारे बाप पर सलाम। ये चावलों की थैली तुम्हें उस औरत ने दी है जिसका बच्चा यतीम और बीमार है। खैरात करनी है तो उसी को वापस दे। अगर मैं उससे ना लेता तो वो शर्मिंदा होती कि उसका तोहफा मामूली है। तुम ये चावल बू अली से ले लो, अगर नहीं लोगे तो बू अली शर्मिंदगी महसूस करेगा। शेख बू अली इब्ने अब्दुल्ला सीना फरमानदार खुरमसान तुम हो? शेख मैं हूं। बड़े लोग बड़े लोगों से ही मुखातिब होते हैं। तुमने मुझे शेख का लक़ब दिया है ताकि मैं भी तुम्हारे बराबर हो जाऊं। अगर तुम्हारा फने तबाबत भी तुम्हारी नुक्ता संजी की तरह है तो फिर हम ठीक जगह आए हैं। मैं अमीर सामानी का वजीर हूं। मैं खुद तुम्हें मिलने और दावत देने आया हूं। अमीर के दरबार और अमीर से मुलाकात की। खुशामदीद। तुम्हारे लिए घोड़ा तैयार है। अभी घोड़े पर सवार हो जाओ और हमारे साथ चलो। आओ हमारे आगे आगे चलो ताकि हम तुम्हारे पीछे पीछे चलें। मैं इल्तजा करता हूं कि जरूर आऊंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। मैं एक मरीज देखने जा रहा हूं। क्या जरूरी है कि हकीकत को कूचाओ बाजार में बयान किया जाए? अमीर सामानी भी बीमार है। जानता हूं, अगर ऐसा ना होता तो मेरे पास किसी को ना भेजता। ये जानते हुए कि अमीर तुम्हारे इल्म का मोहताज है तुम देर कर रहे हो। देर नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त कोई और है जिसे मेरी अशद जरूरत है। कौन है जो अमीर सामानी पर मुकद्दम है? एक बच्चा। किस खानदान का? खानदान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। तुम जानते हो मैं तुम्हें ताकत के जोर पर भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। ताकत से क्यों, जबकि मैं खुद आ रहा हूं। मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूँ। जानता हूं, लेकिन सिर्फ मुझे, मेरे इल्म को नहीं। मुझे किस लिए बुलाया है? मुझे इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। हम भी जानना चाहते हैं कि शेख बू अली सीना हमारे बाप के इलाज के सिलसिले में हमसे क्यों मिलना चाहता है। तुम बड़े हो, ये तुम्हारे मशवरे से हुआ है। हरगिज ये बात नहीं, ये अब्बा जान का हुक्म है और अब्बा जान का ये हुक्म वजीर के जरिए हमें। वो वजीर वो आ रहा है। पुरसुकून रहो, तेजी से सोचना और इत्मीनान और सुकून से बात करना, कहीं रात जाहिर ना हो जाए। शाहजादों को सलाम। इसरान नूह इब्ने मंसूर सामानी को। ए हकीम,
हम में से कोई भी बीमार नहीं है कि तुमने हमसे मिलने का तकाजा किया। हमने तुम्हें बारियाब किया, अब कहो सलाम के बाद क्या कहना चाहते हो? आपकी उम्र दराज हो और सलामती देर पा हो। मैं कुछ कहने को हाजिर नहीं हुआ, कुछ सुनने आया। क्या सुनना चाहते? आपके वालिद साहब के बारे में कहिए कि उनकी सेहत कैसे खराब हुई। वो 1 महीने से महल से नहीं निकले। वो न शिकार पर जाते हैं, न तलवार चलाते हैं, न सवारी करते हैं और न शाही। हुकूमत वजीर के हवाले कर रखी है जो इसे नेक फाल समझता है। रोज बरोज उनकी ताकत कम हो रही है, कमजोर हो चुके हैं, खाने से रग़बत नहीं रही, बीवियों से लाताल्लुक हो चुके हैं। बस इससे ज्यादा नहीं जानते। आप उनके सबसे ज्यादा करीब हैं। बस बताओ कि उनका इलाज क्या है। जैसा कि तुमने कहा कि हम अमीर के करीब तरीन लोगों में से हैं, तो फिर हमारे हुक्म के बगैर हमारे सामने कोई नहीं बैठ सकता। होगा। इलाज से पहले इल्लत को जानना चाहिए। अमीर के बहुत से मुआयने किए गए हैं जिनसे मेरा मकसद बीमारी का सबब जानने के अलावा कुछ नहीं। अगर उनकी यही हालत रही तो अमीर न सिर्फ ये कि सवारी, शमशीर जनी, शिकार, फरमारवाई न कर सकेंगे, बल्कि अमीर जिंदगी को भी अलविदा कह देंगे। इस बदकोई पर इसकी जबान हल्कूम से खींच लेनी चाहिए। क्या आज तक किसी ने भी साया खुदा को मरते देखा है? फिर तेरा फन्ने तबावत किस काम आएगा? जब किसी के करीब तरीन अफराद उसकी मौत के ख्वाह हों तो किसी काम नहीं। लेकिन अगर जनाब अमीर अपनी जिंदगी चाहते हैं तो वो अपने पैरों पर चलकर मेरे मतब पर आएं कि वो चलकर आ सकते हैं। मैं उनका इलाज वहां करूंगा। अब मैं चलता हूं। ये एक और गुस्ताखी है। इस हकीम के बच्चे को अपनी इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वजीर से बात करने के बावजूद वो कुछ नहीं जानता। तुम्हें उसे कत्ल कर देना चाहिए था। तुमने दस्ते पर हाथ रखा लेकिन तलवार नहीं निकाली। क्यों उसके कत्ल का इल्जाम तन्हा मुझ पर आता? तुम्हें मेरी हिमायत में तलवार निकालनी चाहिए थी जो तुमने नहीं निकाली। मैं तो उसे कत्ल करने पर आमादा था। फिर तुमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया? मैं कत्ल कर देता। तुम्हें पुरसकून होना चाहिए। अब वो चला गया है, बस अपनी तलवारें न्याम में कर लो। तुम दोनों अपने बाप की मौत की खुशी छुपा नहीं सके। वो तुम्हारी खुद एतमादी के टूटने का मुंतजिर था, जो टूट गई। वो कुछ नहीं जानता और ना ही जानेगा। वो काफी हद तक समझ गया है। तो अमीर उसके मतलब पर जाएगा। हंसने का मकाम है। तो फिर हंसो। लेकिन अमीर अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस बदबख्त हकीम के ठिकाने पर जरूर जाएगा। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अली